Today I am going to start second number chapter, linear programming. Earlier I discussed about introduction to operational research. In this video I will give you the brief introduction to linear programming and what are the applications of it, then advantages, limitations, and a brief history of it. So let us start. First, introduction to linear programming. As you know that during World War II, G.B. Denzing was working with US Air Force and was facing many problems such as allocation of weapons to different locations of war, military logistics problems. So, since sources of weapons and other logistic facilities were restricted, it was very crucial to allocate optimum number of weapons or logistic facility in order to fulfill the objective of winning war. वॉर हम तभी जीत सकते हैं जब हम मिनिमम रिसोर्सेस मतलब ऑप्टिमम वे में हमारे जो भी इक्विपमेंट्स है वॉर के उनको अलोकेट करें और उनका सही यूज़ करें. At that time, he developed a technique for solving those problems, and that technique is called as linear programming. And linear programming consists of two words, linear and programming. Linear word represent that the relationship between variables is linear. If the value of one variable is changing, the value of other variable also changes in certain proportion, that we called it as a linear. अगर एक वैल्यू चेंज करेंगे तो उसके साथ दूसरी वैल्यू उसके प्रपोर्शन में चेंज होगी. सेकंड वर्ड इज प्रोग्रामिंग. Programming means mathematical modeling and development of algorithm for solving of a problem that involves optimum allocation of limited resources by choosing a particular strategy among various alternative strategies in order to achieve the desired objective. प्रोग्रामिंग के अंदर जो भी मैथमेटिकल मॉडलिंग और अल्गोरिदम डेवलप किया जाएगा फॉर सॉल्विंग पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जिसके अंदर क्या किया जाएगा, ऑप्टिमम अलोकेशन किया जाएगा लिमिटेड रिसोर्सेज का बाय चूजिंग पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी अमॉन्ग वेरियस अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी. जो भी अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज अवेलेबल है उसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी चूज़ करके इन ऑर्डर टू अचीव डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव, जो भी हमारा डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए. LP is a mathematical modeling for optimization of a function, which is our objective function, subject to restricted resources of variables represented in terms of set of linear equations and or inequalities. LP मैथमेटिकल मॉडल है फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फंक्शन और ऑब्जेक्टिव फंक्शन. बेसिकली वी कॉल एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन. जो भी हमको ऑप्टिमाइज करना है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है, जैसे कि रिसोर्सेज हमारे वेरिएबल्स जो है वो रिस्ट्रिक्शंस में आएंगे, ठीक है, और उनको रिप्रेजेंट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज. लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में या इनइक्वालिटी, वो हम आगे देखेंगे. इनइक्वालिटी मीन्स लेस देन और ग्रेटर देन. नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन? ऑब्जेक्टिव फंक्शन मे बी टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट और टू मिनिमाइज द कॉस्ट और एनी अदर मेजर्स विच इज टू बी obtained in the best possible और optimal manner. ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या है, यहाँ पे जो भी प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज करना है या फिर कॉस्ट को मिनिमाइज करना है या फिर एनी अदर मेजर विच इज़ ऑब्टेन्ड इन द बेस्ट पॉसिबल और ऑप्टिमल मैनर. या उसके अलावा अगर कोई हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव है तो उसको ऑप्टिमल वे में
और बेस्ट पॉसिबल वे में हम कैसे अचीव कर सकते हैं, वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। फिर आती है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स आर रिस्ट्रिक्शन ऑन अवेलेबल मैन आवर्स, material, money, machines. These are the constraints. We can say basically these are the limitations, that we have limited man hour, limited material, limited money, limited machine. If the resources are unlimited, then there will not be need to define any kind of strategy. Since resources are limited, it is required to have defined a strategy. अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तब तो कोई स्ट्रेटेजी चाहिए ही नहीं, तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन सिंस ये सारे रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, उसकी वजह से स्ट्रेटेजी चाहिए होगी। सिंस एलपी इज डीलिंग विथ फुलफिलिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन बेस्ड ऑन रिस्ट्रिक्टेड कंस्ट्रेंट, फॉलोइंग आर प्री रिक्वायरमेंट ऑफ एलपी। अभी यहाँ पर जो भी लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को फुलफिल तो करेगा बेस्ड ऑन रिस्ट्रिक्टेड कंस्ट्रेंट्स, बट उसके लिए कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स है। जैसे कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट है डिसीजन वेरिएबल्स शुड बी इंटर रिलेटेड एंड नॉन नेगेटिव। डिसीजन वेरिएबल्स आर those variable which are decided at the starting of solving problem. जो भी डिसीजन वेरिएबल है, जो डिसाइडिंग फैक्टर्स वी कैन से, वो इंटर रिलेटेड होने चाहिए, एक दूसरे से रिलेट करने चाहिए और नॉन नेगेटिव होने चाहिए, और वो हमको प्रॉब्लम के स्टार्टिंग में डिसाइड करना है, बाद में हम उसको डिसाइड नहीं कर सकते। सेकंड थिंग इज there must be well-defined objective function which can be represented as linear function of decision variables. As linear programming works on the linear equation, that's why जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको हमको वेल डिफाइन करना पड़ेगा, और जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको लीनियर फॉर्म में, डिसीजन वेरिएबल्स है उनको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। Third, there must be constraints on the amount resource which can be expressed as linear equations or inequalities in terms of decision variables. यहाँ पे कुछ constraints होती है amount of resources, जो भी amount of resources है उसके ऊपर कुछ constraints है, और उनको भी हमको linear equation के फॉर्म में या फिर inequality के फॉर्म में in terms of decision variables के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेकंड टॉपिक इज प्रॉपर्टीज और अजम्पशंस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल हैज 5 properties or assumptions. First one is proportionality. The amount of each resource consumed and its contribution to profit in objective function must be proportional to the value of decision variable. If the food 100 grams of F1 can provide 10 grams of vitamin A, then 500 grams of F1 can provide 550 ग्राम ऑफ विटामिन ए। यानी कि जो भी रिसोर्स कंज्यूम होगा और उसका कंट्रीब्यूशन होगा प्रॉफिट के अंदर, वो प्रोपोर्शनल वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज ज़्यादा कंज्यूम हो और प्रॉफिट में उसका कंट्रीब्यूशन कम हो, यानी कि प्रोपोर्शनल वे में होना चाहिए। सेकंड इज नॉन नेगेटिविटी. इट इज अज्यूम्ड दैट the value of decision variables are either 0 or positive. It cannot be negative. उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती. The non-negative condition shows that LP deals with real life situation. अभी नॉन नेगेटिविटी यहाँ पर क्या इंडिकेट करती है कि LP किसके साथ डील करता है, रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ डील करता है। थर्ड, कंटिन्यूटी. It is assumed that the solution value of decision variables and the amount of resources used need not to be integer values.
यहाँ पर अजम्पशन किया जाता है कि जो भी अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज़ हो वो इंटीजर वैल्यू हो या नहीं हो तो चलेगा. कंटिन्यूस वैल्यू ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स एंड रिसोर्सेज मस्ट बी परमिसिबल. लेकिन जो भी डिसीजन वेरिएबल्स है और रिसोर्सेज है उनकी कंटिन्यूस वैल्यू परमिसिबल है. बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव 4.5 प्रोडक्ट्स एज ऑप्टिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट. बट जो हमारा फाइनल आउटकम जो हमको मिलता है ऑप्टिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट वो इंटीजर वैल्यू नहीं होना चाहिए. मतलब वो 4.5 ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है. नेक्स्ट इज एडिटिविटी. The total value of objective function equals to the sum of contribution of each variable to the objective function. जो भी total value of objective function होगा equal to the sum of contribution of each variable. ये सेम proportionality की तरह है कि जो भी contribution है every variable का उनका sum करेंगे तो वो टोटल वैल्यू जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की उसके इक्वल होना चाहिए. सिमिलरली टोटल रिसोर्स यूज इज द सम ऑफ रिसोर्स यूज ऑफ ईच वेरिएबल. ईच वेरिएबल के लिए जितने रिसोर्स यूज होंगे वो इक्वल टू होंगे टोटल रिसोर्सेस. फॉर एग्जाम्पल टोटल प्रॉफिट अर्नड फ्रॉम सेलिंग n प्रोडक्ट्स must be equal to the profit earned by selling items individually. And on the other hand, total cost of manufacturing n products must be equal to cost of manufacturing items individually. यानी कि अगर n प्रोडक्ट्स है उनको अगर हम कंबाइन में सेल करें या फिर इंडिविजुअली सेल करें तो जो इंडिविजुअली सेल करके उनका सम करेंगे तो वो प्रॉफिट और अगर कंबाइन में सेल किया तो वो प्रॉफिट इक्वल होना चाहिए. सेम वे फॉर द मैन्युफैक्चरिंग. सो ये हो गया एडिटिविटी. देन सर्टेनिटी ऑफ कोएफिशिएंट्स. इन ऑल एलपी मॉडल्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट्स और राइट हैंड साइड coefficients of the constraint and resources value are certainly and precisely known and measurable. Also, it is assumed that those values remain constant irrespective of time. यानी कि हमें मालूम है कि हमारी कुछ कंस्ट्रेंट्स है और उस कंस्ट्रेंट की वैल्यू हमको मालूम होनी चाहिए और वो डिफाइंड होनी चाहिए. मतलब कितने मैन आवर्स मशीन आवर्स अगर उसकी वैल्यू वेरी नहीं होनी चाहिए. जैसे कि 5 मैन आवर्स तो वो एट दैट टाइम वो कांस्टेंट होनी चाहिए. दैट इज द सर्टेनिटी ऑफ कोएफिशिएंट. So these are the 5 properties or you can say assumptions of LP that after this assumption we can use LP model. Now let us discuss what are the various advantages of LP. Linear programming has an advantage that optimum allocation of resources. That's why we use linear programming. LP helps in making optimum use of available resources. It shows the allocation of resources to fulfill the objective function. Second advantage is improvement in quality of decision. LP improves the decision quality because it gives clear cut value of decision variables to fulfill the objective function. अभी हमको पता चल गया है कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस चीज़ से अचीव होगा तो डायरेक्टली हम क्लियरली डिसीजन ले सकते हैं. यानी कि इम्प्रूवमेंट आएगा इन क्वालिटी ऑफ डिसीजन. एक्सप्लोरिंग बॉटलनेक मशीन्स. Bottleneck machines are those machines which cannot meet the demand while due it other machine remain idle.
LP model identifies bottleneck machine and explores the problem of low प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ प्लांट। बॉटलनेक मशीन्स की जिसका कम प्रोडक्शन है और वो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं या फिर जो भी हमारी डिमांड है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो जो भी बॉटलनेक मशीन्स है उसको आइडेंटिफाई करता है और जो लो प्रोडक्शन प्लांट कैपेसिटी है उसको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है। Re-evaluation of basic plan. LP re-evaluation of basic plan for changing conditions. If the conditions change when the plan is partly carried out, they can be determined so as to adjust the remainder of the plant for best result. यानी कि रीएडजस्टमेंट और रीइवोल्यूशन यहाँ पर पॉसिबल है। These are the some advantages of linear programming model. Now let us discuss the limitations of LP model. As we seen in the assumption that LP treats relation among decision variable as linear. However, always it is not possible to have linearity, यानी कि हर टाइम linearity हो ऐसा possible नहीं है। दूसरी limitation, LP assumes that outcomes of problem has decision variables as integer. LP does not guarantee that the answer will always have integer value. अभी जो भी हमने assumptions देखे सो वो ही चीज़ यहाँ पर आएगी लिमिटेशन में, कि हमने अज्यूम किया कि जो भी डिसीजन वेरिएबल है और आउटकम जो आता है हमारा प्रॉब्लम का वो इंटीजर होना चाहिए, लेकिन ऐसा LP गारंटी नहीं देता कि इंटीजर वैल्यू ही आंसर आएगा। Third, LP assumes that certainty of coefficient, but in each case it is not possible to determine the value of coefficient. यानी कि जो हमने डिस्कस किया कि जो मेन मशीन मटेरियल आवर है वो फिक्स्ड होने चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ कोएफिशिएंट उसमें वेरिएशन नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभार ऐसा पॉसिबल नहीं होता, जो भी कोएफिशिएंट है वो वेरी हो सकते हैं। Fourth, LP deals with the single objective function, where in real life situation business may have multiple objective function. अभी LP क्या करता है, ये हमारा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव लेकर उसको ऑप्टिमाइज करने की ट्राई करता है, लेकिन जो भी रियल लाइफ सिचुएशन में उसमें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव हो, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। एंड लास्ट इज LP इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ टाइम। अभी यहाँ पर टाइम की वजह से क्या इफेक्ट हो रही है वो LP इसमें कंसिडर नहीं करता है। सो दीज आर दी सम limitations of LP model. Our next topic is applications of linear programming. First is where application is in product management. Production management. So this is the we are starting the applications of LP model. When LP techniques was developed, its main purpose was to solve the military related problems, but nowadays LP has found wide application in many areas such as industry application, management application and other applications. So in product management, the first is product mix. Company produce number of products for same limited production resource. In such case, it is essential to determine the quantity of each product to be produced, knowing their profit and amount of material consumed by each of them. The objective is to maximize the total profit subject to all constraint. कंपनी जो है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती है फॉर द सेम लिमिटेड प्रोडक्शन रिसोर्स, जो भी रिसोर्सेस है उसके अंदर से, ठीक है। और उस सब केस में क्या होगा, जो एसेंशियल क्या है, हमको डिटरमाइन करना है क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट, द एवरी प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी होगी, टू प्रोड्यूस नोइंग देयर प्रॉफिट एंड अमाउंट ऑफ मटेरियल कंज्यूम बाय देम,
कितना मटेरियल कंज्यूम होगा और उसमें से कितना प्रॉफिट जनरेट होगा वो हमको जानना है। द ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट सब्जेक्ट टू ऑल कंस्ट्रेंट। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है जो भी कंस्ट्रेंट्स है उनको कंसिडर करने के बाद। सेकंड इज blending problems. When a product can be made from variety of available raw materials, each of which has a particular consumption and price. जब कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं फ्रॉम वेराइटी ऑफ अवेलेबल रॉ मटेरियल, एवरी प्रोडक्ट हैज़ इट्स पर्टिकुलर कंपोजिशन, उसकी एक पर्टिकुलर कंपोजिशन होगा, कॉम्बिनेशन होगा और उसकी एक पर्टिकुलर प्राइस होगी। The objective here is to determine the minimum cost blend subject to availability of raw materials and the minimum and maximum constraints on certain product constitute. यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी ब्लेंड सब्जेक्ट है उसकी कॉस्ट मिनिमाइज करनी है और जो भी रॉ मटेरियल है उसकी ब्लेंडिंग कॉस्ट मिनिमाइज करनी है और मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज द कंस्ट्रेंट्स ऑन सर्टेन प्रोडक्ट कंस्टिट्यूएंट्स। जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट हो कंस्ट्रेंट्स में वहाँ पर मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन करना है, ये ब्लेंडिंग प्रॉब्लम। थर्ड इज ट्रिम लॉस। व्हेन एन आइटम इज मेड इन स्टैंडर्ड साइज such as glass paper sheet, the problem that arise is to determine which combination of requirements should be produced from standard materials in order to minimize the trim loss or we can say wastage। यानी कि अगर स्टैंडर्ड साइज ही हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या आएगा, हमको डिटरमाइन करना होगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन होगा जो हमको प्रोड्यूस करना है फ्रॉम स्टैंडर्ड मटेरियल जो हमको मिनिमम ट्रिम लॉस या फिर वेस्ट देगा। प्रोडक्शन प्लानिंग, दिस डील्स विथ determination of minimum cost production planning over a planning period of an item with a fluctuating demand, considering the initial number of units in inventory, production capacity, constraints on production, manpower and all relevant cost factors. The objective is to minimize the total operation cost. So यहाँ पर भी सेम हमको क्या करना है, जो भी टोटल ऑपरेशन कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना है थ्रू मैनेजिंग द प्रोडक्शन प्लानिंग। सो इन प्रोडक्शन मैनेजमेंट देर आर 4 एस्पेक्ट्स, दैट इज प्रोडक्ट मिक्स, ब्लेंडिंग प्रॉब्लम, ट्रिम लॉस एंड प्रोडक्शन प्लानिंग। नाउ द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ linear programming is in marketing management. In marketing management, the first is media selection. Linear programming technique helps in determining the advertising media mix so as to minimize the effective exposure subject to limitation of budget, specified exposure rates of different markets, segment, specified minimum and maximum number of advertisements in various medias। सो इसमें भी जो है कितनी एडवर्टाइजमेंट करनी है, कहाँ पर करनी है, कैसे हम मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुँच सकते हैं। सो ये हो गया मीडिया सिलेक्शन विथ अ मिनिमम कॉस्ट। देन सेकंड इज ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। The problem of salesman is to find the shortest route starting from a given city, visiting each of specified city and then returning to the original point of departure, provided no city shall be visited twice during the tour. Such type of problem can be solved with the help of modified assignment technique। जो भी ट्रैवलिंग पर्सन है सेल्समैन, उसका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जो भी शॉर्टेस्ट रूट पॉसिबल है वो फाइंड करना है, और वो हम कैसे करेंगे, यूजिंग असाइनमेंट टेक्निक। वो हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। थर्ड इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर प्रोग्रामिंग डिटरमाइंस द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड
efficient manner of locating manufacturing plants and distribution centers for physical distribution. ये मोस्ट इकोनॉमिकल प्लांट्स है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसकी लोकेशन भी फाइंड करने में हेल्प करता है. तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में 3 एप्लीकेशंस है: मीडिया सिलेक्शन, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. इन नेक्स्ट application is in agricultural application, in which in farm management these problems are related to individual farms. LP can be applied in agriculture planning, allocation of limited resources such as acres, labor, water supply and working capital in such a way that to maximize the net revenue. And fourth application is financial management. Capital budgeting problem is the first one. This deals with the selection of specific investment activity among several other activity. The objective is to find out the allocation which maximizes the total expected return or minimizes the risk under certain limitation. जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है कि अलोकेशन करना है जो मैक्सिमाइज करेगा प्रॉफिट को और जो रिटर्न है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और रिस्क कम हो. देन प्रॉफिट प्लानिंग, दिस डील्स विद द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मार्जिन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन प्लांट फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट, कैश ऑन हैंड एंड इन्वेंटरी. फिर नेक्स्ट जो है वो है मिसेलिनियस प्रॉब्लम्स. मिसेलिनियस प्रॉब्लम में सबसे पहला है डाइट प्रॉब्लम. डाइट प्रॉब्लम में क्या है कि ऑप्टिमाइजेशन करना है फूड क्वांटिटी इन ऑर्डर टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग सर्टेन प्रपोर्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ फूड. फूड की कॉस्ट भी मिनिमाइज करनी है और जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी मेंटेन करनी है. सेकंड इज इंस्पेक्शन प्रॉब्लम. These problems are related with the deciding optimum number of inspectors in order to inspect the raw material. Also, the cost of inspection should be minimized and the reliability requires being high. And last is military application. Military application includes the problem of selecting an air weapon system against enemy so as to keep them pinned down and at the same time minimize the cost and loss to country. So these are the various applications of LP. So this is it for today's lecture. Thank you very much for listening me carefully. Have a nice day.